میرے آج جمعے کی یہ عبادت روزوں کے آخری جمعے کی عبادت ہے. پھر اس کے بعد کھجوروں کے اتوار کے بعد پاک ہفتے کا آغاز ہو جائے گا. تو ہم روزوں کے اختتام کی طرف ہیں اور بار بار پاک کلام نے ہمیں خدا یسوع مسیح کے دکھوں پر غور و خوض کرنے کی دعوت دی اور پھر خدا یسوع مسیح کے دکھوں پر غور و خوض کرنے کے بعد اپنی زندگی پر بھی غور و خوض کرنے کی دعوت دی پاک کلام نے کہ خدا یسوع مسیح نے دکھ کیوں اٹھائے. ہمارے لیے خدا یسوع مسیح دکھوں میں پڑا, ہمارے لیے خدا یسوع مسیح پھر اس کے بعد صلیب اٹھاتا ہے, کلوری کے راستے پر چلتا ہے, پھر صلیب پر مرتا ہے. تو ہمارے لیے روزوں کا یہ سارا سفر جس میں ہم نے بار بار یہی سنا, پھر اس کے بعد 14 مقام کی عبادت میں بھی ہم خدا یسوع مسیح کے نہ صرف دکھوں پر غور و خوض کرتے رہے بلکہ 14 مقام کی عبادت کے ذریعے ہم نے کوشش کی کہ خدا یسوع مسیح کے ان دکھوں میں شریک بھی ہوں. آج کا پاک کلام رشتے کے بارے میں ہے. رشتہ, پہلی تلاوت ارمیا نبی دوستوں کے بارے میں یہ کلام کرتا ہے کہ میرے دوست چاہتے ہیں کہ میں ٹھوکر کھاؤں اور میرے دوست یہ چاہتے ہیں کہ میں دھوکہ کھاؤں اور یہ ان کی خواہش ہے کہ میں ختم ہو جاؤں. کوئی باہر سے نہیں, اپنے ہی دوست. میں نے کہا کہ رشتے کی بات ہے آج کے کلام میں کہ کون دشمن کون ہے, باہر سے نہیں ہے کوئی بھی, اپنا جو جانتا ہے. اور ارمیا نبی یہ کہتا ہے کہ کوئی باہر سے نہیں ہے, میرے اپنے ہی یہ چاہتے ہیں کہ میں ٹھوکر کھاؤں, میرے اپنے چاہتے ہیں کہ میں دھوکہ کھاؤں اور مصیبتوں میں پڑوں. پھر انجیل مقدس, خدا یسوع مسیح یہودی تھا اور یہودی اسے آج کے پاک کلام میں کہ وہ اسے پکڑنا چاہتے تھے تاکہ اس کو سنسار کریں. اتوار کی باتیں سنسار کا مطلب کہ پتھر مار کر ہلاک کر دینا. تو آج یہودیوں کا بھی یہ ارادہ تھا کہ ہمارے پاس ایک واجب الزام آ گیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو خدا کے برابر کہتا ہے, میں خدا کا بیٹا ہوں. تو یہودیوں کے مطابق خدا کے برابر کوئی نہیں ہے, خدا کے برابر کوئی نہیں ہے, تو یہ حق بھی نہیں کسی کو کہنے کا کہ میں اس کا بیٹا ہوں. تو خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں اس کا بیٹا ہوں. تو ان کو ایک جواز مل گیا کہ ابھی ہم اس کو سنسار کر سکتے ہیں کیونکہ اس نے کفر بکا ہے, اس نے خدا کے خلاف بات کی ہے کہ میں اس کے برابر ہوں. ابھی یہاں پر بھی مارنے والے کون ہیں؟ اس کے اپنے یہودی, جن میں سے خدا یسوع مسیح جن کے ساتھ رہا ہے وہی اسے مارنا چاہتے ہیں. میرے عام زندگی میں بھی جب تک کوئی اپنا مارنا نہ چاہے کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا کسی کا. کیوں؟ کیونکہ اپنے کو پتا ہے کیا کمزوریاں ہیں, کیا اچھائیاں ہیں. اپنے کو پتا ہے کہ کہاں پر کیا ہے, باہر والے کو نہیں پتا ہے. یہودیوں کو ہی پتا تھا, خدا یسوع مسیح کے شاگردوں میں سے ہی یہودا کو پتا تھا کہ وہ کہاں ہوگا, تو وہ پولیس کو لے کر وہاں پر ہی آتا ہے تاکہ خدا یسوع مسیح کو پکڑوا سکے. باہر سے نہیں کوئی پکڑوا سکا خدا یسوع مسیح کو. اس کے شاگرد جو اس کے ساتھ تھے, جنہوں نے مرنے اور جینے کا وعدہ کیا تھا کہ ہم تیرے ساتھ ہیں, لیکن اس کو مروانے والے بھی اس کے اپنے ہی.
मारने वाले भी अपने ही, पकड़वाने वाले भी अपने ही हैं। तो मेरे जो रोज़ों के अय्याम में जहाँ पर हमने बहुत खुदा यीशु मसीह के दुखों पर गौर खोज किया, आज का पाक कलाम हमें ये बताता है कि ये रिश्ते जो हैं हमारे, हम इनको कैसे गुजार रहे हैं। अगर रिश्ते अच्छे हो जाएं तो दुश्मनियां भी खत्म हो जाएं। अगर रिश्ते अच्छे हो जाएं तो हम धोखा भी नहीं देंगे। अगर रिश्ते अच्छे हो जाएंगे तो हम नाइंसाफी भी नहीं करेंगे। अगर रिश्ते अच्छे हो जाएंगे तो हम किसी के लिए ठोकर पैदा नहीं करेंगे। अगर रिश्तों में प्यार मोहब्बत आ जाएगा, अगर रिश्तों में कबूलियत आ जाएगी, अगर रिश्तों में इंसाफ आ जाएगा, तो ये जो सारा मामला है ये खत्म हो जाएगा। जब अपने अच्छा सोचना शुरू करेंगे तो मेरे जो हम मसीहत में और ज्यादा मजबूत होंगे। यही खुदा यीशु मसीह चाहता था, इसलिए उसने जीते जी भी यही कहा, सलीब पर भी यही कहा कि अब आप इनको माफ कर। उसने ये नहीं कहा कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है तो इनको फना कर, अगर मैं सलीब पर चढ़ा हूं तो इनको भी सलीब पर चढ़ा, बल्कि उसने कहा कि बाप इनको माफ कर। उसने सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद भी नफरत नहीं, नफरत की दीवार नहीं बनाई है, माफी की, कि बाप इनको माफ कर। यानी अगर खुदा यीशु मसीह चाहता तो दुश्मनी की दीवार खड़ी कर सकता था। आज की इंजील मुकद्दस में खुदा यीशु मसीह जहां पर जाता है, मुकद्दस यूहन्ना जहां पर इस्तबाग देता था, तो खुदा यीशु मसीह वहां पर जाता है और लिखा है कि यूहन्ना ने तो कोई करिश्मा नहीं दिखाया था, लेकिन जो कुछ उसने कहा वो खुदा यीशु मसीह को लोग देख रहे थे कि जैसे उसने कहा वो पूरा हुआ। तो फिर भी लोग खुदा यीशु मसीह को कबूल करते हैं। बहुत सारे लोग वहां पर भी खुदा यीशु मसीह पर ईमान ले आए। तो अगर खुदा यीशु मसीह कहता मुझे सलीब दिया है, तो उसके साथ भी लोग थे, शायद वो भी खुदा यीशु मसीह के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाते। तो आखिरकार क्या होना था? नफरत की दीवार पैदा होनी थी, कत्लो गारत होनी थी। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने ऐसा कुछ नहीं किया। ना जब वो शागिर्दों के साथ था, जब वो तालीम देता था तब भी नहीं, और मरते वक्त भी, मरने से पहले भी उसने माफी का दर्ज दिया कि जो रिश्ते टूट सकते थे, खुदा यीशु मसीह ने उन रिश्तों को दोबारा जोड़ दिया माफ करके, कि बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि क्या करते हैं। मेरे जो हमारे लिए ये काफी नहीं है कि हम सिर्फ खुदा यीशु मसीह के दुखों पर गौर खोज करें, उसके दुखों में शामिल हों। ये सही है, होना चाहिए, लेकिन ये आखिर नहीं है। ये आखिर नहीं है। आखिर तब है जब हम रिश्तों को बचाने की कोशिश करेंगे, जब हम रिश्तों को जो टूटे हैं उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। रिश्तों में जिनमें दरारें आ गई हैं, उन दरारों को खत्म करेंगे, तो फिर हम खुदा यीशु मसीह के दुखों में शामिल होंगे, क्योंकि उसने माफ किया है। तो उसका जो इरादा था कि अगर वो माफ कर रहा है तो हमने भी माफ करना है, अगर वो कबूल कर रहा है तो हमने भी कबूल करना है। उसके दुखों में शामिल होकर हमने उसके सिर्फ दुखों को महसूस नहीं करना, जो उसका इरादा था सलीब पर भी, उस इरादे को हमने पूरा करना है, उस इरादे को आगे लेकर चलना है। अगर उस इरादे को आगे लेकर चलते हैं तो हम खुदा यीशु मसीह को लेकर चलते हैं, नहीं तो 14 मकाम की इबादत का भी कोई फायदा नहीं है। ये सिर्फ हम तक महदूद हैं। लेकिन जब हम माफ करेंगे, कबूल करेंगे, तो फिर हम वाकई उसके शागिर्द होंगे कि वाकई अगर उसने कहा है माफ करो तो हम माफ कर रहे हैं। अगर उसने रिश्तों को बचाया है तो हम भी उन रिश्तों को बचाएंगे। अगर उसने नफरत की दीवारों को तोड़ा है तो हमने भी उन दीवारों को तोड़ना है। नहीं तो यिर्मयाह नबी भी ये कहता है कि मेरे दोस्त ही ये चाहते हैं कि मैं ठोकर खाऊं,
मैं धोखा खाऊं, लेकिन हमारा उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है कि क्या हम भी नफरत की दीवारें खड़ी करेंगे? क्या हम भी किसी के लिए ठोकर का बायस बनेंगे? क्या हम भी किसी के लिए पत्थर रास्ते में रखेंगे कि ये ठोकर खाए और गिरे? कि या फिर हम पत्थर उठाने वाले बनेंगे, हम आसानियां पैदा करने वाले बनेंगे, कि या फिर मुश्किलात? तो मेरे रोज़ों के इस सफ़र में, इन अय्याम में, अगर हम रिश्तों को बचाने वाले नहीं बनेंगे तो ये जंग शैतान की जो है, फिर शायद हम उसमें ज़्यादा कामयाब हों। और जो जंग खुदा यीशु मसीह सलीब तक लड़ते रहे, शायद हम उसमें आगे ना बढ़ सकें, क्योंकि हमने रिश्तों को बचाना है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमें नुकसान उठाना पड़ता है रिश्तों को बचाने के लिए, धोखा भी खाना पड़ता है रिश्तों को बचाने के लिए। लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि ये मुकद्दस पतरस कहता है कि ये जानकर करो कि खुदा के लिए करते हो, ना कि इंसान के लिए। अगर हम इंसान का सोचेंगे तो हम कभी भी अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें धोखा भी मिला है, फ्रेब भी हुआ है, हमने भी किया है धोखा, हमने भी फ्रेब किया है। तो इसलिए हम अगर ज़हनी तौर पर इंसानी सोच के साथ करेंगे तो कभी भी नहीं। लेकिन अगर ये अल्फाज ज़हन में रखकर कि मैं खुदा के लिए कर रहा हूँ ना कि इंसान के लिए, तो हमें ना कभी माफ़ करने में मुश्किल होगी, ना कबूल करने में मुश्किल होगी। खुदावंद हमें ऐसा करने की तौफीक दे।